एक दूसरे को नहीं बताया कि कौन बंदा है। हरि ओम आदित्या वशुरुद्रा विश्वे देवाश पैतृकाः तिलकं ते प्रयच्छन्तु इष्टकामार्थसिद्धये। बुढ़ल इसको बुढ़ा विश्वे देवाश पैतृकाः तिलकं ते प्रयच्छन्तु इष्टकामार्थसिद्धये। ये कहाँ से उठाया था? आइए to welcome our Honorable Chief Guest, Dr. Kedar Singh Ji, Collector Shahdool, on the occasion of her investiture ceremony. It is our proud privilege to welcome a huge round of applause on this monumental occasion of the school's investiture ceremony. हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। Eliminate the path of learning and success. एक बत्ती जलाओ। इसको जलाना है, उधर से जलाओ। जलाओ। सैचुरेशन किए जाने पर आपको पुरस्कृत। I would like to call Mahendra sir to pin badge. Is an officer of the Indian Administrative Service selected in 2021 batch, originally 2009 She is a dedicated and dynamic consideration of development and progress of our district. I would like to request our academic in charge, senior section, Mrs. K.
open badge to our honorable guest. Of our school, she is our respected principal, ma'am, Dr. Bhavna Tiwari ji. मैम, आपके नेतृत्व में हमारा विद्यालय शिक्षा, अनुशासन और सह पाठ्यक्रम की उपस्थिति अतिथियों का स्वागत करती हूँ। And I would like to request Arun sir and Mahen sir to welcome our guest. हमारे बीच हमारे पत्रकार बंधु श्री रविंद्र वैद्य जी नई दुनिया में उपस्थित हैं। Heartfelt welcome staff whose tireless efforts ensure the smooth functioning of our school events. Now I would like to request our respected principal ma'am kindly come on the dais and deliver her words. Honorable, very respected Dr. Kedar Singh ji, Collector Schedule, Honorable respected Mrs. Soumya Anand ji, CEO, Jila Panchayat, dear teachers, staff members and my lovely students, all the guests present here, Jai Gurudev and a very good morning to all. It is my privilege and great honor to extend a warm welcome to our distinguished guest, Honorable Dr. Kedar Singh ji, whose exemplary leadership and dedication have strengthened the foundation of growth, harmony and progress in our district. Honorable Mrs. Soumya Anand ji, whose dynamic vision and tireless commitment to rural development and education have brought lasting benefits and opportunities to our community. Your gracious presence here today adds immense significance to this investiture ceremony, a day when we entrust leadership to our young students. We are truly grateful that you have taken time from your busy schedules to be with us. Your lives are shining examples of discipline, dedicated service and integrity, qualities we wish our students to adopt. Respected sir and madam, at our school, along with academic excellence, we focus on building strong values and peaceful mind. One of unique features of our school is transcendental meditation, which our students practice twice daily. This simple yet powerful tactic helps them develop clarity of thought, inner calm, and the ability to face challenges with confidence. We believe that true leadership begins with a calm mind and a compassionate heart. Today, as a part of the oath-taking ceremony for the year 2025, we proudly present the newly elected leaders of our school. The head boy and head girl, the deputy head boy and deputy head girl, the house captains of 4 houses, Narayan, Parashar, Vyas and Vashisht, along with the secretary and deputy secretary of our various clubs like Eco Club, Sports Club, Safety and Security, Health and Wellness Club, Heritage Club and Traffic Commando Club. We are also pleased to announce the selection of English leaders from all classes.
These leaders have been selected for their overall conduct, discipline, and academic excellence. Head boy and head girl lead school events, ensure smooth functioning, and encourage students' participation, all while fostering a positive school atmosphere. House captains organize inter-house competition, sports activities, and house assemblies, promoting teamwork and enthusiasm. Class captain and vice class captain act as a bridge between teachers and students, manage classroom discipline, and oversee activities in the absence of subject teachers. Secretaries and deputy secretaries of club encourage participation in co-curricular activities, enriching school life, both in their classes and across the school. In short, a good leader possesses integrity, dedication, respect for others, strong communication skills, and sets an example through punctuality, politeness, and a school's values. Your leadership will set dedication and determination you can achieve excellence. On behalf of the entire school, I extend my deepest Jilla Panchayat for gracing us with their dynamic presence. Your encouragement, blessings, and guidance will inspire our students to aim higher and serve with humbleness. Once again, congratulations to our new leaders. Let us look forward to a year filled with achievement, growth, and proud moments for our school and for our country. Thank you. Jai Gurudev, Jai Maharshi, Jai Hind, Jai Bharat. A melodious song. इतना बने महान
honorable guest, President of the program, Mrs. Soumya Anandji, to an ornament with session. Congratulations to both of you. Good after this thing, I'm friend to our deputy head boy, Amar Ahmed, an ornament with session. I would like to request our honorable guest, our deputy president and honorable president. Congratulations to both of you. It's time to recognize the leader of class 11 by Vice Captain Shri Tiwari of class 8 with yellow color flag. I would like to request Honorable Chief Guest to hand over the flag to the Captain of Narayan House. Please hand over to the Captain. Congratulations to both of you. Versus House with blue color flag of class 11 maths, Vice Captain Sakshi Singh of class 10. I would like to request our honorable guest to hand over the flag to the captain of the Vasist House. Ma'am, you please hand over to the captain of the Vasist House. Congratulations to both of you. Captain Aditi Gupta of class 11th 5, Vice Captain Shreya Soni of class 10. I would like to request our honorable collector sir to hand over the red flag to the house captain. Congratulations. Parachute House with green color flag. Captain Ajit Divyansh Singh. I would like to request our honorable CEO ma'am to hand over the flag to the captain of Parashar House. Congratulations to both of you. Various clubs. Sports Club, Secretary Ritansh Verma, Deputy Secretary Abhay Singh, coming forward. I would like to request Honorable Collector Sir to hand over the banner of Sports Club to the Ritansh. Congratulations to both of you. Secretary Riha Dubey. Now I would like to request our honorable guest to hand over the banner to the Secretary of Eco Club. Deputy Secretary Tanishka Hadgil. I would like to request our Honorable Collector Sir to hand over the banner to Aditya, Secretary of the Club. Congratulations to both of you. Deputy Secretary Rishi Verma. I would like to request our Honorable
guest to hand over the banner to the secretary of this club. Congratulations to both of you. Shabharti of class 11, Deputy Secretary Sharat Sonwani of class 10. I would like to request Honorable Collector Sir to hand over the banner to Diksha Bharti. Congratulations to both of you. Deputy Secretary Suryan Jain. I would like to request our honorable guest to hand over the banner to you. Congratulations to both of you. Once again, a huge round of applause for all the bearers. The oath, and everyone will repeat after me. I do solemnly affirm that I shall faithfully abide by the vision of Maharishi Vidya Mandir School. I will do respect in true spirit of my school. I will guide, support and inspire my fellow students and work selflessly for the honor of my school and the service of my nation. They have proved their excellence by securing first position in respective classes, and they are rank holders in all three sections of each class. नेशनल लेवल पे आया था ऑनर्ड इफ यू गिव 5 minutes for that purpose. आपका
हैंडशेक करने का मन है तो बिल्कुल कर सकते हैं, सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? सबके साथ शेक हैंड कीजिए। यस। शेक हैंड कीजिए। यस। आगे ऊपर नहीं करना है। बेटा इधर देखो। It will be a memory for them, sir, forever. Taking hand to the respective dignitaries. ये सारे बच्चे 3 सेक्शंस हैं, और सेक्शंस के टॉपर बच्चे हैं। चल थोड़ा बहुत कम चल रहा है। दूसरा होने वाला है। This is our choir group of the school. इन्होंने अभी भजन गाया था सर। ऊपर नहीं, ऊपर शेक है। हाँ फोटो खिंचाओ। यस। ऐसे हैबिट अभी प्रैक्टिस देखी है। शेक है। सर से Now I would like to invite our Yes. Arun Singh sir. नीचे से चले। Principal ma'am, teachers and my dear friends. It is with immense pride and gratitude that I, Anil Kumar Yadav, stand before you today as the head boy of Maharshi Vidya Mandir School, session 2025-26. This moment is not just an honor for me, but also a responsibility that I accept with sincerity and dedication. First and foremost, I would like to thank our respected principal ma'am
and teachers for believing in me and giving me this opportunity to serve our school. Being the head boy, it means upholding the values of our school, maintaining discipline, showing respect to all. I believe that with teamwork, respect and dedication, we can make our school not just a learning place, but a place where every student feels valued, encouraged and inspired. Once again, I thank you all for this trust and honor. I promise to serve with honesty, humility and hard work. Thank you. Jai Gurudev, Jai Maharshi. Thank you, Anil. Now I would like to call our head girl, Tanushri Gupta. Honorable guests, respected principal ma'am, teachers and all my team members. I, Tanushri Gupta, standing before you as the head girl of this prestigious institution, Maharshi Vidya Mandir School, is one of the proudest moments of my life. I want to express my heartfelt gratitude to our respected principal ma'am, teachers and all my peers for believing in me. Without your encouragement and faith, I would not be here today. As a head girl, I promise to be fair, supportive and committed to upholding the values of our school. I believe that every student here is capable of greatness. Each of us has talents, dreams and a power to make a difference. Let us support one another, celebrate each other's achievement and face challenges with courage. As we begin this new chapter, I hope to lead with kindness, inspire with actions and work with dedication. Together, let's make this year memorable, not just for our achievements, but for the friendships we build and the values we uphold. Thank you once again for this honor. I promise to give my very best. Jai Gurudev, Jai Maharshi. Call our deputy head boy, Hamaz. Jai Gurudev, honorable guests, respected principal ma'am, teachers and everyone present over here. I, Hamaz Ahmed, stand before you as the deputy head boy of the school. I promise to work hand in hand with the head boy, school leaders and every student to make this school a place of learning, respect and growth. I am truly grateful for the trust and responsibility that has been given to me. Together, let us strive to achieve excellence and make this year memorable for all. Thank you. Jai Gurudev, Jai Maharshi. Thank you, Hamaz. Now I would like to call deputy head girl, Akriti Singh. Guests, respected principal ma'am, teachers and my schoolmates. It is a great honor to stand before you as the deputy head girl of our school. I, Akriti Singh, sincerely thankful to our respected principal ma'am and my supportive teachers for trusting me with this responsibility. I promise to lead with dedication, support my team and work for the betterment of our school. Together, let us strive to uphold our values and make our school proud. Thank you. Jai Gurudev, Jai Maharshi. Now I would like to humbly request our Honorable Chief Guest, Dr. Kedar Singh Ji, Collector Shahdool. Sir, please deliver your valuable words of wisdom to inspire and motivate our students. The strength of our school is 1,700. मौसम की अनिश्चितता के कारण सर हम अपना ये कार्यक्रम बाहर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे सारे बच्चे आपके आशीर्वचनों को अवश्य सुनेंगे. सर प्लीज Programs President Mrs. Soumya Anand ji ma'am to bless our students with precious thoughts. Respected Principal Madam, all the teachers and my dear students. Very good afternoon to all. Already 12 बज गए हैं, so good afternoon हो गई है. A very very good afternoon to all. सबसे पहले I wish my best to all the captains, all the head boys, head girls और सारे क्लब्स के जो सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं. I congratulate all of you and I wish you the best for your upcoming 1-2 years. अभी हमारे हेड बॉय, हेड गर्ल और डिप्टी हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल ने अपने प्रॉमिसेस शेयर किए. आपके प्रॉमिसेस सुन के it was a good feeling to hear all your promises and I hope and I'm sure that you will fulfill all your promises with the utmost dedication, utmost sincerity.
यहाँ पे आई वुड हैव अ पीस ऑफ एडवाइस आप सभी के लिए, जो सभी कैप्टन्स हमारे बने हैं, हमारे हेड बॉयज़, हेड गर्ल्स, अलग अलग क्लब्स के, इको क्लब्स के, सेफ्टी क्लब्स के, हेल्थ क्लब के जो भी कैप्टन्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, आप आज के स्टूडेंट्स हैं, आप आज के यूथ हैं। आज के यूथ और आज के स्टूडेंट्स विल बिकम द लीडर्स ऑफ टुमारोज। आप आज जो भी करेंगे, आपकी पर्सनालिटी जैसी भी फ्रेम होगी, जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेंगे और जो भी आप फुलफिल करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को, वो आगे आप फ्यूचर में किस तरह के लीडर बनेंगे वो पूरा शोकेस होगा। क्योंकि आप फ्यूचर में आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर, आप कोई भी प्रोफेशन चूज करेंगे, आप प्रोफेसर बनेंगे, आप या एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, या आप IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, कुछ भी, आप चाहे सिंगर भी बनेंगे, डांसर बनेंगे, आप कुछ भी प्रोफेशन चूज करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक लीडर होंगे फ्यूचर में। और फ्यूचर में जो लीडर होगा वो आज के स्टूडेंट्स होंगे। इसमें हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनका बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स में ये बोला था कि टुडेज यूथ एंड स्टूडेंट्स विल बिकम द लीडर्स ऑफ नेशंस फॉर टुमारो। सो इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकलती है कि आपके पास एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास एक मौका है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है अपने आप को एक्सप्लोर करने की, साथ में आपको भी एक स्कूल को एक्सप्लोर करना है। अभी आप हेड बॉय हैं स्कूल के, हेड गर्ल हैं स्कूल के, जैसा कि प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि आपको स्कूल रन करना है सभी के सपोर्ट से। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा और कैसे आप एक अच्छे हेड बॉय, अच्छे हेड गर्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएंगे, तो उसके लिए बहुत ही बेसिक है कि एक टीम वर्क। आपको अपनी टीम ढूंढनी है। आपको सभी बच्चों में कौन आपकी टीम का पार्ट बन सकता है, कौन टीचर्स आपकी टीम का पार्ट बन सकता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो सोल्यूशन के लिए आप अपनी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने को कोई थॉट इम्पोज नहीं करना है किसी पे कि मैं तो हेड बॉय हूँ या हेड गर्ल हूँ। हमें सभी स्टेक होल्डर से सुनना है। एक अच्छा लीडर वो है जो सबकी बात सुने। सबसे पहले आपको सुनना है, तो दूसरों को समझ सके, सुन सके, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि हम क्या कर सकते हैं। बेस्ट हमारी आदत में हमेशा इंग्रेन होना चाहिए, किसी को कुछ एडवाइस देने से पहले वी शुड हैव दिस कैपेसिटी टू लर्न और टू लर्न एंड लिसन। जितना आप सुन पाएंगे, जितना आप देख पाएंगे, जितने आप आईज, ईयर्स और माइंड अपनी ओपन रखेंगे, आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऑब्जर्व करेंगे आप बहुत कुछ, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बहुत आसानी से आप निकाल लोगे और बहुत ही आसानी से हंस खेल कूद के। अपने को यहाँ पे कुछ ऐसे किसी से लड़ाई नहीं करनी है अननेसेसरी। कोई भी प्रॉब्लम मान लीजिए, किसी दो स्टूडेंट के बीच में लड़ाई हो गई, दो ग्रुप्स बन गए, तो अपने को क्या करना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनिए, एक कॉमन पॉइंट पे आइए। कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है, इससे आप दोनों को पैसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबके साथ चलना है, सबको लेके चलना है और किसी को पार्शल नहीं होना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है लीडर की, इम्पार्शलिटी। आप जितने इम्पार्शल होंगे उतने ही रिस्पेक्ट लोगों की, आपके और स्टूडेंट्स की आपके टुवर्ड्स बढ़ेगी कि हाँ ये हमारे हेड बॉय है या हेड गर्ल है या कैप्टन है, क्लास कैप्टन, ये सबकी सुनते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी सुनते हैं या उनकी सुनती है, सबकी सुनती है। तो उससे आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ प्रॉब्लम दिखती है स्कूल में, हमें कुछ चेंजेस करने हैं, हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हमें ये नहीं बोलना है कि आप ये कीजिए वो कीजिए। आपको चेंज का पार्ट बनना है। यू हैव टू इनिशिएट द चेंज। If you want to change the world, if you want the world to change, you have to change yourself. सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर की यही क्वालिटी होती है। और जो हमारे फादर ऑफ नेशन है गांधी जी, उनका यही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रहा कि उन्होंने बहुत फ्रीडम स्ट्रगल के बाद हमारे देश की आज़ादी में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि उन्होंने खुद से अपना शुरू किया, उन्होंने इम्पोज नहीं किया और उन्हें सबको साथ में लेके चला। इसके साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे, पहलू पे बात करना चाहूँगी। जैसे आप सभी टॉपर्स हैं, मुझे प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि
स्कूल कैप्टन्स और हेड बॉयज हेड गर्ल्स सब टॉपर्स हैं। तो आपकी टॉपर का क्या मतलब होता है और स्टूडेंट लाइफ का क्या मतलब होता है? जैसे आपके जो स्टूडेंट लाइफ का फेज था उससे मैं गुजर चुकी हूँ। सब लोग, हम टीचर्स, हमारे चीफ गेस्ट आज के कलेक्टर सर, प्रिंसिपल मैडम, सब लोग उस फेज को पार करके आज यहाँ पे हैं। तो अगर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करती हूँ तो मेरे फेस पे एक स्माइल आती है और मुझे ये कन्विक्शन आता है कि स्टूडेंट लाइफ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ थी। जो मेरे फर्स्ट से लेकर 12th तक 12 साल में जो मैंने सीखा, उसकी जो सीखा मैंने, उसने मुझे आज बनाया है। स्टूडेंट लाइफ ने मुझे मेरा कैरेक्टर फ्रेम किया, मुझे जो क्वालिटीज़, अलग क्वालिटीज़ जो सब आई मेरे पास स्टूडेंट लाइफ से आई। तो आप बच्चों, आपके जो 12 साल रहते हैं स्कूल के, अपने को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं हमें एक्सप्लोर करना है। और हर चीज़ में, सिर्फ एजुकेशन में नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पढ़ाई का क्या मतलब है, एजुकेशन का क्या मतलब है। क्या अपने को पढ़ाई करके, याद करके टॉप करना एजुकेशन का मतलब है? जैसे आप कोई 6th क्लास में होंगे तो आपको क्या करना है? हमें पढ़ाई करनी है समझने के लिए। आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आप क्लास 6 में सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आपको समझना है कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम क्यों है, सोलर सिस्टम कैसे आया, सोलर सिस्टम कब आया या कब उसकी डिस्कवरी हुई। तो अपने को जितने क्वेश्चंस हम पूछ पाएंगे अपनी टीचर से, अपने आप से, ये एक सीखने का तरीका है, ये पढ़ाई करने का तरीका है। तो अपने को बचपन से ही ये क्वालिटी इंग्रेव कर ली है कि मुझे टॉप करने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे समझने के लिए पढ़ना है। अब जब मैं समझने के लिए पढ़ने लग जाऊंगा या पढ़ने लग जाऊंगी तो टॉप करने से या अच्छे मार्क्स आने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। आपने 3 इडियट्स देखी है क्या? सभी ने देखी है? उसमें कुछ बच्चों ने नहीं देखी है क्या? जिन्होंने नहीं देखी है मैं उनको बोलूंगी आप 3 इडियट्स जरूर देखो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी को एक बार 3 इडियट्स मूवी जो है ऑडिटोरियम में बैठ के दिखाएं। हाँ, तो 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर है रणछोड़ दास चांचर, जो आमिर खान जी ने प्ले किया है। वो बोलते हैं कि अपने फ्रेंड से, उनका फ्रेंड फेल हो जाता है। वो बेसिकली वो हॉस्टल में साथ रहते हैं और वो बच्चा फेल हो जाता है, उसका फ्रेंड। तो वो अपना रूम चेंज कर रहा होता है हॉस्टल में कि नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं फेल हो गया हूँ, और अगर ऐसे रहा तो मैं आगे भी फेल हो जाऊंगा। तो उसको रणछोड़ दास चांचर जो है राजू को, राजू उसका फ्रेंड का नाम है, वो उनको बताता है कि राजू हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है, लेकिन हम टॉप करने के लिए नहीं, हमें सीखने के लिए पढ़ेंगे। और उसके बाद वो उसको बताता है कि अपने को परफेक्शन के पीछे भागना है, ना कि कामयाबी के पीछे। अगर आप इस तरह पढ़ेंगे कि हमें टॉप करना है तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें इस तरह पढ़ना है कि मुझे सोलर सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, मुझे पता होना चाहिए, मुझसे कोई भी सवाल पूछ ले तो मुझे सब कुछ आना चाहिए उसमें। अगर इस तरह पढ़ेंगे तो आपको टॉप करने से या आपको कुछ भी अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, और आप निश्चित ही आपके 100% मार्क्स और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो वो क्वालिटी आपको अभी से इंक्रीज करनी है। और एक और चीज़ रहती है कि ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ना। स्टूडेंट लाइफ में आप जितने लीडर्स के बारे में, हमारे देश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, महात्मा गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहुत सारे हमारे देश के जितने भी ग्रेट लीडर्स रहे हैं, आप उनके बारे में पढ़िए। मैं टीचर से, प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट करूँगी, इनको आप लाइब्रेरी में बुक्स प्रोवाइड कराइए, आप फोटोज लगाइए इनके क्लासरूम्स में, सबके पोस्टर्स लगे हों, बच्चे देखेंगे तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि स्कूल टाइम में मुझे याद है, उस टाइम हमारे स्कूल में पढ़ाते थे और मुझे बहुत इंटरेस्ट था ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ने में। तो आप जितना उनसे सीखेंगे, आप पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। और पढ़ने की आदत, खुद से पढ़ने की आदत, ये बहुत अच्छी आदत है जो स्कूल से अगर अपने को आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अपने को सिर्फ किताबें, स्कूल वाली किताबें नहीं, एक्स्ट्रा किताबें पढ़िए और नॉवेल्स पढ़िए, फिक्शनल बुक्स पढ़िए, नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़िए। तो ये क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और
एक और चीज कि अब आप बोलेंगे कि मैडम सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात कर रही हैं, तो अपने को पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीजें पढ़नी है। एक पहले ऐसे बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन ऐसा आज बिल्कुल नहीं है। आज पढ़ना भी है और खेलना कूदना भी है, सब कुछ करना है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में स्पोर्ट्स कीजिए, स्पोर्ट्स को चूज कीजिए। म्यूजिक टीचर है आपके पास, म्यूजिक सीखिए, डांस सीखिए, पेंटिंग सीखिए, आपको जो मौका मिले सब कुछ करिए। आपको नहीं देखना है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मुझे लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं। आप जाइए, आपको सब पार्टिसिपेट करना है। आपको जब भी कहीं बोलने स्कूल लाइफ से, और जितना कॉन्फिडेंस आपका स्कूल लाइफ से बिल्ड होता है वो आपकी पर्सनालिटी में आपको दिखेगा। और अगर स्कूल लाइफ में ऐसा हो गया कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाया, तो कॉलेज में जाने में आपको हमेशा डर लगेगा कुछ नई चीज ट्राई करने में, कुछ नया बोलने में, कुछ नया पढ़ने में। आपको लगेगा कि आप ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो स्कूल में मौका है, आप जो है आपको सब कुछ करना है। आप ये सोचिए जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है मुझे सब करना है। मैं गंदा गाना गाता हूँ, गाना है, मैं बहुत गंदा गाना गाती हूँ, लेकिन मुझे मन करता है गाने। सभी उधर बच्चे भी बहुत खुश हो रही। इसके बाद जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी, अपने को फिर सोचना है कि क्या हम कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या बनना है। प्रोफेशन में आपको क्या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपको टीचर बनना है, या आपको जज बनना है, या आपको कोई ऑफिसर बनना है, एक्सेट्रा। छोटा नहीं है, कोई भी प्रोफेशन बहुत बड़ा नहीं है। आपके लिए स्काई इज द लिमिट। आप जो भी सोच सकते हैं आप वो सब बन सकते हैं। आपको सोचना है पहले, आप पहले बड़ा सोचिए, सोचने के बाद प्लानिंग करो। प्लानिंग, अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं बट हम प्लानिंग नहीं कर पाते। हम मेडिकल लेनी होगी, फिर उनको नीट का एग्जाम होता है, वो उसके लिए तैयारी करनी होगी। तो नीट का सिलेबस क्या होता है वो आपको देखना है सिलेबस में, और 11th-12th का सिलेबस क्या है बोर्ड्स का वो देखना है। क्या कुछ कॉमन देंगी, कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशंस करने पड़ेंगे। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ आपको एक्स्ट्रा ट्यूशंस, एक्स्ट्रा मेंटरशिप मिल जाती है। अपने को दिल्ली जाना जरूरी नहीं है या भोपाल जाना जरूरी नहीं है। तो इस तरह आप प्लानिंग कीजिए कि आपको जैसे आप हैं तो अगले 5 साल का प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए कि मुझे 5 साल में ये अचीव करना है और कैसे करना है। हर एक साल का उसमें, फिर हर एक साल में आप फिर उसको और शॉर्ट मास्टर प्लानिंग अगर आप करोगे तो निश्चित ही कोई ऐसा नहीं होगा कि आप फेल हो जाओ। और अगर उसके बाद फेल भी हो जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। जो फेल होके उसके बाद फिर से उठना है, फिर से ट्राई करना है। अगर हम मेहनत पूरी करते हैं, लगन से काम करते हैं, अब फेल भी हो जाते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता। हम सोचते हैं मैं और मेहनत करूंगा, मुझे और ट्राई करना है, मेरे अंदर और एनर्जी है क्योंकि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इतना कर पाया, मुझे थोड़ा सा और प्रयास करना है और मैं करूँगा। तो इसलिए आपको प्लानिंग करनी है। इसके लिए आपके टीचर्स हैं, सब लोग यहाँ पे आपके हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। कोई आपको मदद के लिए मना नहीं करेगा। काउंसलिंग के लिए आपको कुछ भी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है तो भी आप पूछ सकते हैं। 10th के बच्चे, 9th के बच्चे, तो आप 9th क्लास से 10th के बच्चों को अब तक मोटा मोटा प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि मुझे क्या करना है आगे। फिर जो करना है उसको कैसे करना है उसके सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। तो इस तरह आप जो है प्लानिंग करने के बाद धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उस पर कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि क्या अपने को जैसे कुछ बच्चे, मैं यहाँ पे क्योंकि मुझसे इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ बच्चों को सिविल सर्विसेज में जाना है तो कहते हैं, जैसे मैडम ने मुझसे पूछा क्या स्कूल से पढ़ाई शुरू कर देनी है क्या उसकी। इसके लिए ये जवाब है कि आपको स्कूल में कुछ अलग पढ़ाई नहीं करनी है। आपको जैसे आपका 10th का है या 12th का है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको आपको डेडिकेटली और अच्छे समझ के पढ़ना है। तो सिविल सर्विसेज के लिए आपकी तैयारी बाद में होगी, अभी आपको सिर्फ अपनी स्कूल वाली तैयारी करनी है। तो लेकिन कॉलेज के लिए आप अभी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को इंजीनियर बनना है तो उसके लिए वो एग्जाम होता है IIT JEE का, उसके लिए वो देख सकते हैं। नीट के लिए देख सकते हैं। किसी को रिसर्च में जाना है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, उसमें किस तरह एडमिशन होता है, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, डिटेल में देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए उसके, और फिर उसके मॉक टेस्ट देखिए। फिर आप उसको देखिए कि अभी मैं किस स्टेज पे हूँ
और उसका एक रफ टेस्ट आप करके देखिए, कोई बात नहीं आपके कम नंबर आएंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि अभी मेरी क्या स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स का है, आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि 10 कम है, मुझे कट ऑफ 80 जाएगी, तो मुझे 70 का गैप है अभी मेरे पास, तो मुझे उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है। तो इस तरह आप धीरे धीरे प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक आगे हमारे ऑनरेबल गेस्ट जो है कलेक्टर सर, क्योंकि आप मेरे से बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपने गाइडेंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। थैंक यू और जय हिंद। I would like to humbly request our honorable chief guest, Dr. Kedar Singh जी, आप अपने आशीर्वचनों से बच्चों को आशीर्वाद दें। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आदरणीय प्रिंसिपल और ऋषि विद्यालय के सभी अध्यापक, मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी सीओ जिला परिषद आदरणीय शामिया जी, बच्चों, मैडम अच्छा पढ़ा रही थी, तो अच्छी टीचर भी है ऑफिसर होने के साथ साथ। ये सारी चीज़ों के पहले कुछ करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ कर कैसे सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। मुझे डॉक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, बिजनेस करनी है, ये सब करना है, अभी से प्लान कैसे करोगे? इसके लिए आपके अंदर कुछ चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि मेरा रुचि हमारी है, इंटरेस्ट है, हमें लक्ष्य टारगेट देना पड़ेगा, तत्परता हमारे भीतर होनी चाहिए कि हम करना चाहते हैं, लगन होनी चाहिए उसके लिए हम करना चाहते हैं। विद्यालय की एक सामान्य सिद्धांत पर डिपेंड करता है। वैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं कागज में, एक सामान्य सिद्धांत होते हैं, मतलब एक क्या एजुकेशन के सामान्य बातें होते हैं, शिक्षा के मामले में साइकोलॉजिकल मानते होते हैं और एक जनरल सिद्धांत प्रिंसिपल्स होता है। ये सामान्य सिद्धांत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद हम उसके साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। अब उद्देश्य अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ करने का नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि अगर शिक्षक बिना उद्देश्य के अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उस नाविक के समान होता है जिसको अपना गंतव्य बता रही है कहाँ जाना है। और बच्चों की हालत बहुत ही है पतवार ही, तो धकेले खाते खुलते किसी किनारे पर जाकर पहुँच जाती है। पहुँचना कहाँ है उसे तय नहीं। तो पहुँचने के लिए जो मैडम अभी बता रही थी, आपको हाई स्कूल के बाद तय करना होता है कि मुझे कुछ बनना है या बिजनेस करनी है। दूसरी बात ये थी कि लाइफ में आपको खेलना कूदना गाना बजाना जो मस्ती कर सकते हो करो, लेकिन दूसरे मैडम करने नहीं दूँ। उनकी अपनी सीमा है, मर्यादा है कि आपको पढ़ाना भी उसी अवधि में है, आपको सिखाना भी है। क्योंकि कुछ बच्चे इतने छोटे हैं तो घर से निकल के आए तो उनके पेरेंट्स जैसा उनके साथ बिहेवियर भी चाहिए, उन्हें हमें मोड़ना भी है, तराशना भी है और उसे सही लाइन पे लाके खड़ा भी करना है। बच्चों से सुबह से जब मिलना हो तो देख के ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें कहीं प्रेशर होगा होता है। एक अच्छे वातावरण के साथ विद्यालय में है। एक चीज़ और बात करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बात करते हैं, क्लास में टीचर की निगाह तो मेरे ख्याल से क्लास में बच्चे को होनी चाहिए कि पीछे कौन बैठा है, आगे कौन सा है। लेकिन हम जनरली उस बच्चे को तलाशते रहते हैं जब कोई सवाल उठता है, हाथ ऊपर कौन करता है और हमारी निगाह उस पर चली जाती है। ये सामान्य क्लास का स्थिति है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो। अगर मैं कोई सवाल करता हूँ तो सारे बच्चे के साथ हाथ ऊपर नहीं करता, उसमें तो कुछ ही करते हैं, शायद हमारी आंखें भी उन्हें ढूंढती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आंखें उनको ढूंढनी चाहिए जिनके हाथ ऊपर नहीं हुए। हम जानते हुए भी कई बार सवाल का जवाब नहीं देते हैं, शायद हम अंदर कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। पहले मुझे लगता है कि उसका आंसर मुझे आता है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, और थोड़ी देर बाद अंदर से मन करता है कि गलत तो नहीं हो सकता है। गलत होगा तो बच्चे क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे,
बाद में मुझे डांट पड़ सकती है। ये दोनों तरफ से ये संकोच की स्थितियाँ है, खत्म होनी चाहिए। टीचर को चाहिए कि अगर बच्चा बोलना चाहता है तो बोले, और बच्चे को ये चाहिए जो तुम्हारे समझ में आ रहा है। अभी आपने एक बात सुनी थी, मैडम ने बोला कि मौका सबको मिलता है, गलत होगा तो सही करना हमारे पास है ना। शिक्षक की ड्यूटी ये है कि अगर गलत सवाल भी आता है तो उसे कहा जा सकता है कि बेटा तुमने जवाब तो बहुत अच्छा दिया, अगर इसको थोड़ा सा ऐसा और बोल देते तो और बढ़िया हो जाता। बनस्पति भी उसको जवाब देते हैं, लेकिन तुम गलत हो बैठे, तुम ठीक बोल रहे हो। मैं अपना दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, सोनिया का 3 इडियट्स का। एक मशीन की परिभाषा आती है, मशीन की परिभाषा आपने देखी होगी, साउथ इंडियन बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा होती है, टीचर बोलता है क्या बात है, खुश हो जाता है। और उसी परिभाषा को वो आदमी सीख के समझ के कि मशीन होती क्या है और सरल भाषा में बच्चों के सामने रखना चाहता है, उसे मानने से इनकार कर देता है। अगर आप उस चीज को समझ लेते हो, सीख लेते हो, उसके अंदर घुस जाते हो, तो फिर उसकी परिभाषा आप किताबी भी कर सकते हो, गैर किताबी भी कर सकते हो, खुद परिभाषा उसकी गढ़ सकते हो। हम ये भी ढूंढते रहते हैं विद्यालय में कई बार, क्योंकि जन्म से सारे बच्चे जैसे नहीं होते। ये बात तो सगे भाई बहन भी नहीं मिलते हैं जो प्रिंस होता है, उनमें भी हाइट, बुद्धि, कुछ न कुछ अंतर होता है। तो फिर हम समान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कुछ बच्चे का बुद्धि थोड़ा शार्प होती है, एक बार में समझ जाते हैं, कुछ उनको 2-3 बार प्रयास करना होता है तब वो सीख सकते हैं। तो विद्यालय परिवार का दूसरा रूप है। यहाँ मुझे हर बच्चे को उसको समझ के उसे समझाने की कोशिश करना है। मैं पढ़ता था, मुझे हाई स्कूल में एक चीज नहीं आती थी, मेरे टीचर ने बहुत कोशिश की और मैं उसमें 3 दिन तक लगातार मुझे पढ़ाने की कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने मना कर दिया कि आप इसको छोड़ दो, क्या परीक्षा में एक कहना पूछा जाएगा और भी बहुत सारे पूछे जाएंगे, मैं पढ़ सकता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। और फाइनली मैंने छोड़ दिया, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब मुझे पढ़ाने का मौका मिला, मैं पढ़ा चुका हूँ 5 साल, तब मुझे वही चीज़ मेरे सामने खड़ी हो गई। अब मेरे पास जवाब क्या है, अब कैसे मैं जवाब दूंगा? बच्चों को ये नहीं पढ़ाऊँ तो उसका दूसरा पढ़ाऊँ। तो सामने और इधर दोनों में फर्क आ जाता है। वहाँ से अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते या ले नहीं पाते हैं, हम सीधे भागते हैं शॉर्टकट। ये सही है कि सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, कठिन से सरल की ओर आने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी सिद्धांत भी ये कहता है कि पहले आप उस काम को करिए जहाँ कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। आप पहले उसको वक्त मत खराब करिए जहाँ हम 80% मेहनत करें और 20% आउटपुट निकालें। आप पहले 20% मेहनत करके 80% आउटपुट निकाल सकते हो, उस काम को करिए, धीरे धीरे उस कठिन काम को करिए। जब टीचर की हैसियत से हम कॉलेज में पहुँचे तो मुझे 2-3 चीज़ें थी, कुछ स्कूल वाली थी जो मुझे नहीं आती थी, कुछ कॉलेज में 1-2 थी जो मुझे नहीं आई थी, तो मुझे सीखनी पड़ी। और मानता हूँ या प्रिंसिपल मैडम भी हैं, बाकी अध्यापिका हैं, कुछ सब लोग बैठे होंगे, सही टीचर तो वही हो सकता है जो विद्यार्थी से ज़्यादा पढ़ता है। अगर घर में हम जाके अपना थैला पटक के सो जाते हैं, घर के काम में लग जाते हैं, सुबह 10 बजे आए, 8 बजे आए, फिर क्लास में चौक उठाया और खड़े हो गए, एक करके किताब लिए सामने रखी पढ़ाना शुरू कर दिया, वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता, सॉरी माफ करिएगा। अच्छा टीचर वही हो सकता है जो घर जाकर भी उसे बच्चे से ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा। कल मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों की और से कौन से सवाल मेरे सामने आ सकते हैं, कौन कौन से इसमें नए क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं, उनके सारे सॉल्यूशन हमारे पास होने चाहिए। और मैं उनको, चूँकि हमारे पास 50 बच्चे क्लास के भीतर हैं, 50 का बुद्धि एक जैसी नहीं है, लेकिन हर बच्चे को मुझे समझाना तो एग्जाम्पल करके हमारे पास आए। कुछ लोग सीधे सीधे पढ़ के आ गए तो समझ भी जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं समझ पा रहे। अब देखते हैं कि बाजार और बाजार में आप 2 चीज़ें पैदा हो गई। बाजार सब जानते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं,
एक उदाहरण और हम कहते सब जगह पढ़ाया जाता है स्कूलों में आवश्यकता आविष्कार की जरूरत कहते हैं कि जरूरत होगी तो चीज बनेगी और जरूरत नहीं होगी तो चीजें नहीं बनेंगी। लेकिन अब समय बदल गया, अब चीजें पहले बनती हैं, जरूरतें बाद में पैदा की जाती है। क्या मोबाइल की जरूरत किसी को थी 20 साल पहले? किसी ने सोचा था कोई ऐसा फोन भी होगा कि अपने घर से या स्कूल से या रास्ते में से बात कर सकते हैं? लेकिन लोगों ने बनाया, हमारे सामने पेश कर दिया, हम उसके गुलाम हो गए। आज स्थिति ये हो गई है कि हम वास्तव में जाते हैं तब भी मोबाइल हाथ में होता है। ऐसा लगता है हमसे इम्पोर्टेंट कोई आदमी है ही नहीं, जो देश का राष्ट्रपति अभी है। अगर 10 मिनट मोबाइल छूट जाएगा, मिस कॉल हो जाएगा, तो पता नहीं कौन सा इम्पोर्टेंट संदेश मिस हो जाएगा, हम छोड़ नहीं सकते हैं। जिन विद्यालयों में बच्चों के पास मोबाइल फोन परमिटेड नहीं है, जैसे नवोदय में विद्यालय स्कूल नहीं होते, बच्चे रहते हैं। सामान्य स्कूल है तो बोर्डिंग नहीं है, डे स्कॉलर है। कुछ बच्चे चोरी से घर पे आए, मोबाइल ऑफ कर दिया, पटक दिया बैग में, प्रिंसिपल मैडम आ रही, तो निकलेंगे तो फोन कर लेंगे, फिर बात कर लेंगे। तो हमारे लिए भी इतना महत्वपूर्ण है, इसकी महत्वपूर्ण उतना ही है कि हम इसमें से कुछ अपने पढ़ने की चीजें निकालते हैं। नेट सिस्टम उसमें से जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं, तो हम उस मोबाइल से अलग अलग चीज़ों में गूगल के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसकी लैंग्वेज सही है, जो मुझे ठीक से समझ में आती है। मुझे वही पढ़ना चाहिए, मुझे समझ में आता है। मुझे उसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए जो मुझे समझ में नहीं आता। तो एक ही चीज़ को अलग अलग आदमी या अलग अलग लेखक अलग अलग अपनी अपनी भाषा में लिखते हैं। कुछ भाषाएं थोड़ी कठिन होती हैं, कुछ भाषाएं सरल होती हैं। स्कूल में जब पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि भाषा शैली, रचनाएं, ये 2-3 शब्द बड़े अच्छे होते हैं। जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता रचनाएं क्या होता है, भाषा शैली क्या होता है, इनका महत्व क्या है। रचनाएं तो जो समझ में आ गई उनके द्वारा लिखी गई चीजें, किताबें पाठ करके पढ़ते हुए लिखी जाती है, लेकिन भाषा शैली का महत्व क्या है, ये हम लोग भूलते जा रहे हैं। एक चीज मैंने और कहा था कि महापुरुष हमारे ऋषि मुनि हैं, आदिकाल से हिंदुस्तान आज का नहीं, लोगों का अपने समय में उनका अपना महत्व, उन्होंने देश को, समाज को कुछ न कुछ दिया है। वो चीज आपकी जनरेशन के बाद डाली उनको नहीं मिलती, उनको तो सिलेबस का नहीं है, हम सिलेबस के पिछड़ा हैं। हम रट के पास तो हो सकते हैं, अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। जब कंपटीशन में बैठोगे तो वो बेकार हो जाएगा। हो सकता है कि कंपटीशन में वो बच्चा सेलेक्ट हो जाए जो मध्यम कैटेगरी का है, जो कभी टॉपर रहा ही नहीं। टॉपर होने के साथ साथ में अगर उस चीज को मुझे हल करना आता है, मतलब रटना नहीं है, क्योंकि हर चीज को मैं कि ये ऐसा इसलिए है, जैसे केमिस्ट्री में ऐसा मैथमेटिक्स में जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं कि गैस कैसे बनती है, अमोनिया फिटकरी है, पानी है, तो वो चीज़ उनको वो मुझे पता होना चाहिए। किसी लेखक सामान्यतः मैं भी सरकारी स्कूलों में देखता हूँ, प्राइवेट में तो नहीं जा पाता जा रहा, कि जहाँ से आज मुझे चैप्टर स्टार्ट करना होता है, हम चैप्टर की पहली लाइन से पढ़ाना चालू करते हैं, लेकिन जिसने वो लिखा है उसके बारे में बातें नहीं करते हैं। जो चैप्टर जिसने लिखा है पहले 10 मिनट उसको मिलना चाहिए कि ये इसने लिखा है, ये कौन आदमी है, किसी ने इसको क्यों लिखा, कोई और कौन लिख के चला गया, क्या उसी का पैसे का अधिकार था, पैटर्न थोड़ी जैसे उसका वो चीज महसूस की और फिर सामने। मुझे नहीं पता ह्यूमैनिटीज सबके कितनी पढ़ाई जाती है, ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाती है नहीं है।
विद्यालय घर से हम निकल गए, हम दोनों को एक बात हमेशा बोलते हैं, बच्चों के लिए और टीचर के लिए भी। घर से टीचर्स के लिए भी कहते हैं हम घर से निकले पढ़ाने के नाम पर, तो हम खुद अगर नहीं पढ़ाएंगे तो या तो घर वालों को झूठ बोल रहे हो, बच्चों से अगर न्याय कर रहे हो तो ठीक है, आप खुद के साथ ज़्यादा पढ़ेंगे। टीचर फ्री है, उसके टीचर का खर्चा सरकार उठाती है, बच्चे से नहीं लिया जाता है, ठीक है, फीस भी नहीं है, उसके बाद भी हम लोग उतना स्कूल को नहीं देना चाहते। हाँ, हमारे पास है कुछ चीज़ें कि जितने बच्चे हमारे पास हैं, जिस संस्था है, शायद टीचर उतने नहीं है हमारे पास, और जो हैं वो हमारे एक जैसे नहीं है। गाँव में जाए तो उनको ये कंपटीशन मिलता है, समझने को मिलता है। अब जिस तरह स्पोर्ट्स में, अभी मैं किसी से बात कर रहा था दिल्ली में, तो मैं वही लिख रहा था कि मध्य प्रदेश में एजुकेशन के मामले में सब कुछ है हमारे पास, बहुत बढ़िया है, खेल मैदान अच्छे हैं, किताबें हैं, पैसा है, फिर भी हम बेहतर संस्थान करने के लिए क्यों तरस रहे हैं? ऐसे कौन से गैप है हमारे पास जिनको मैं भर के और एक अच्छे संस्थाओं में कन्वर्ट हो सकता है, अच्छी एजुकेशन में बन सकता है। हर साल हम नए प्रयोग करते हैं। क्या बच्चे को भोजन नहीं खिला के स्कूल नहीं चलेगा? चल सकता है। उसे जरूरत है अच्छे टीचर की। पेरेंट्स भी विद्यालय में बच्चे को इस विश्वास के साथ पहुंचाते हैं कि मेरा बच्चा इस संस्थान में सबसे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेगा। तो हम दोनों का मकसद होता है कि तुम एक अच्छे टीचर मिल रहे हो, उसका फायदा कैसे ले सकते हो। और टीचरों को ये लगता है कि मुझे एक अच्छे बेहतर बच्चे मिल रहे हैं, तो मुझे पढ़ के नई चीज़ों के साथ क्या बात कर सकता है, हर रोज नया क्या इनके साथ हम कर सकते हैं पढ़ाने के साथ साथ। एक चीज आती है शिक्षा में, खेल खेल में शिक्षा है। और क्या था दूसरा सिद्धांत? तो बहुत सारी चीजें हैं, जनरली हम बहुत बड़ी की तरफ चले जा रहे हैं। एजुकेशन आपने देखा होगा, जब नर्सरी पढ़ रहे हैं बच्चे, नर्सरी से है ना, तो तुम लोग सब नर्सरी से गुजरे हो, है ना? घर में माता जी का तो चाटा तुम्हारी देती हो, थोड़ा उधर करते हैं, डांटते हैं, और देखिए स्कूल में उधर करते तब तो डांटनी पड़ती है, आपकी पड़ती है, ठीक, पिटाई नहीं लगती, वो अधिकार नहीं है हमारे पास, है ना? होना चाहिए। तो ये भी आपका एक परिवार है, घर है, वहाँ तुम 4 बच्चों के साथ में रह सकते हो, या तुम 40 के साथ 400 साथ, और 2 भाई बहन है, आपके पास 200 भाई बहन है आपके पास। लीडर की बात हो रही थी, अच्छा लीडर कौन सा है? तो मैंने कहा कि जो सबकी सुने तो फिर डिसीजन ले। अच्छा लीडर वो नहीं है डंडा लेके सब पड़ता के अंदर कमरे में बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे कि नहीं कोई बात नहीं निकलेगा। वो भय पैदा करने वाला लीडर हो सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में बसने वाला लीडर नहीं हो सकता है। वो विश्वास जीतने वाला लीडर नहीं हो सकता है। तो विश्वास जीतने वाला लीडर होगा, उसका सम्मान सब ज्यादा करोगे। कई बार वो उस आदमी से ज्यादा डरते हैं जो कम बोलता है और मतलब की बात करता है, सिर्फ होता है। तो मैं लगता पता नहीं इसके साथ कोई बातचीत करेगी, कुछ गलत बना नहीं कर जाए। तो मैं नर्सरी के क्लास में बात कर रहा था, जो नर्सरी के बच्चे आते हैं वो बच्चे आते हैं जिनको घर में रहने की आवश्यकता है। अभी उनको विद्यालय नहीं बना के लिए, लेकिन हम विद्यालय भेज देते हैं। हमने उन बच्चों की गारंटी भी ले ली कि हम आपको भी पढ़ा सकते हैं जो आप घर में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और खासतौर पर इसलिए पैदा भी हुआ कि कामकाजी महिलाओं की हमारी संख्या बढ़ रही है, घर में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, कुछ लोग बाहर काम करने जाते हैं, नौकरियां पे जाते हैं, कई जगह तो बच्चे छोटे हैं घर में, उनके लिए हम क्या सोचे तो हमने विद्यालय की तरफ, विद्यालय ने एक रास्ता दे दिया। ये हो गई चीज कौन सी? पहले बनाओ फिर जरूरत लगा, है ना?
ये आवश्यकता नहीं थी, किसी ने नहीं कहा 3 साल का बच्चा उसको स्कूल होना चाहिए, लेकिन हमने 3 साल के बच्चे के लिए स्कूल दे दिया। तो वो लोगों को एक ऑप्शन मिल गया कि हम बच्चा यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ बच्चा मेरा बिगड़ेगा नहीं, बनेगा। शाम को जब उससे मिलेंगे उसमें कुछ नया चेंज मिलेगा मुझे। 3 या 4 दिन गुजरते हैं, उसके बाद उस क्लास के भीतर 30 से 40 बच्चे होते हैं, वो सब 3 साल के नीचे वाले होते हैं, 3, 3.5, बहुत 4 हो सकता है, 4 तो ज़्यादा हो रहा है, 3 से बढ़ते करने लगते हैं। और सारे गुमसुम क्लास में बैठे हैं और टीचर का जैसे प्रवेश कक्षा में होता है सारे बच्चे खिल जाते हैं। ज़्यादा अपनी माँ को देखते हुए इतना खुश नहीं होते, उस टीचर को देख के खुश होते हैं। तो मैं मानता हूँ उस विद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण टीचर तो वही है जो अबोध बच्चे हैं, जिनका विवेक कभी नहीं खुला है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ रहे हैं, वो फ्यूचर उनको नहीं पता, वर्तमान उनको पता है कि हम जो कर रहे हैं वही है, कल क्या होगा, घर में क्या करके आए उसके उसे कोई याद नहीं है, और उसके दिमाग पर कब्जा करता है और फिर वो अपने हिसाब से उन सारे बच्चों को आगे लेके चलती है। तो मानता हूँ विद्यालय की सबसे इंटेलिजेंट टीचर है, और सबसे ज़्यादा सैलरी उसी की होनी चाहिए, जबकि सबसे कम सैलरी उसी की होती है विद्यालय नहीं जनरली बात। तो जहाँ घर में हम 15 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे एक जैसे नहीं रह सकते हैं, तो वहाँ हम 4 घंटे एक साथ कई बच्चों के साथ एक निशा की तरह बैठ कर बात करते हैं बिना डिस्टर्ब किए। उसे पता है बच्चे को कब खेलना है, उसे पता है तो बच्चे को पढ़ाना है तो मेरी बात सुनेगा। तो बच्चों के साथ वो गीत गाना स्टार्ट कर देगी, डांस करना स्टार्ट कर देगी, तो कहते हैं खेल खेल में पढ़ाई, तो खेलते खेलते भी शिक्षा ली जा सकती है। तो बच्चे की मानसिकता बढ़ती है कि इनके अंदर हम कैसे घुस सकते हैं, कैसे बैठ सकते हैं। ये 90% हम सोच के चलते हैं कि हमको जॉब में सरकारी कोई भी नौकरी मिले, लेकिन कभी हम सोचने की कोशिश नहीं करते तो नौकरी तक क्या बात है, हम नौकरियाँ लेने की बात नहीं करते। इंजीनियर भी हो गए, डॉक्टर तो बीच में आ गए हैं, आपको इंजीनियरों के लिए भी जगह नहीं मिली है, कुछ सॉफ्टवेयर को छोड़ देते हो। डॉक्टर तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिया, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल एड पिताजी का दोस्त के हॉस्पिटल बना उसमें चले गए, या हम संपन्न है हमने अपना हॉस्पिटल क्लिनिक खोल दिया। लेकिन बाकी लोगों के साथ दिक्कत है, जो बेरोजगार हैं या नहीं पढ़े तो कौन सा बिजनेस करें। एजुकेशन सेंटर वो आदमी खोलता है जो खुद कभी प्रोफेसर नहीं है। कोई बेरोजगार होकर कहता है कि मैं स्कूल खोल दूं, वो कहता है नौकरी लग जाए, बिजनेस हो जाए, पैसे आके फिर स्कूल खोलेंगे। मतलब स्कूल हमारे सबसे नीचे प्रायोरिटी पे है। अगर आजादी के समय मैं होता तो मैं IAS को सबसे बड़ी नौकरी नहीं मानता, मैं शिक्षक को सबसे बड़ी नौकरी देता कि मैं तेरे घर भी दूंगा, गाड़ी भी दूंगा, बंगला भी दूंगा, तेरी सैलरी सबसे ज़्यादा रखूंगा, लेकिन तेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। उससे अगर हम IAS की वजह कौन सा नाम हो जाता है? तो हमने कभी ये दिमाग में क्यों नहीं आता कि हम एक अच्छा विद्यालय खोल सकते हैं, या 10 अपने जैसे बेरोजगारों को अपने टीचर बना के और बढ़िया कर सकते हैं। और ये विद्यालय के लिए जरूरी है बहुत बड़ा ऐसी जैसी बिल्डिंग हमारे पास हो तभी मैं स्टार्ट करेंगे। हम गांव में रहते हुए देखो बहुत सारे बच्चे विदेशों में नौकरियां छोड़ के खेती खरीद के खेती के काम में घुस रहे हैं। उन्होंने कहा बाहर हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू है, शायद हम उसकी वैल्यू आकलन नहीं कर पाते। एग्रीकल्चर के फील्ड में, हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज में, पोल्ट्री में, जहाँ उनको एक्सपर्टीज है, उनको लग रहा है इसमें मेरा इंटरेस्ट है। सवाल ये आता है बस रुचि का। आपकी रुचि नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। रुचि बहुत जरूरी है, ये काम मैं कर सकता हूँ। कहीं भी बड़े शहर में जाओ, वो आपको सब जगह मिलेगी, फोन होता है, ओला टाइम तक तो फोन मिलेगा। तो 5 लड़के हैं US में बैठे,
दुनिया में उन्होंने नेटवर्क फैला दिया और वहीं से बैठे कंट्रोल कर रहे हैं। उनको पता है तुम्हारी गाड़ी का चक्का पार हो गया, एक पैसे की चोरी नहीं कर सकते उनसे। और उन्होंने बाइक भी छोड़ दी। 5-6 इंजीनियर लड़के हैं, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। तो बिजनेस में भी कर सकते हैं, हम एक अच्छी संस्थान बना सकते हैं। ठीक है, 10-5% बच्चे हो सकते हैं कि वो फादर पे डिपेंडेंट, इतना मजबूत नहीं है परिवार हमारा। तो मुझे लगता है 50 साल पुराने और आज के पिताजी में अंतर आ गया है ना? या 5-6 साल बड़ी हो गई बस। पहले पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाने का काम करते थे कि तुम पढ़ाओ, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। हमारा काम इतने ही है। आज के पेरेंट्स उल्टे हो गए, मुझे तो चाहिए नहीं, बेटे का भी घर हो, बेटी का भी घर हो। मैं उसके 3 पीढ़ी का इंतजाम करने की बात करता हूँ। पहले जो कहावत था घर में एसी मिल गया, कार मिल गई, सब चीज उपलब्ध है, कार से स्कूल जा रहे हैं, तो मुझे एहसास ही नहीं होता है कि पैसा आता कहाँ से। किसी घर में पैसा छापने की मशीन नहीं है, सरकार के पास है, लेकिन वो भी वित्त मंत्रालय कंट्रोल करके बैठा हुआ है। आरबीआई सरकार कहीं भी नोट छापे नहीं छापे, उसके लिए बड़ा भारी निर्णय की आवश्यकता होती है। तो हम जिस चीज पे लेके आज हमें लग रहा है कि मुझे ये चीजें विरासत में मिली है, वो हमारी नहीं है। मैं पिताजी द्वारा दी गई चीजों में कितना कंट्रीब्यूशन जोड़ सकता हूँ, मैं भी खर्च करने के बाद, और मैं अपने साथ कितने लोगों को लेके चल सकता हूँ। किसी के पास पैसा है, किसी के पास मिट्टी है, किसी के पास जगह हो सकती है, किसी के पास समय। अगर 10 बच्चे मिल जाते हैं तो मतलब 200 बच्चों को काम कर सकते हैं। तो नौकरी सरकारी प्राइवेट होना चाहिए, 10%, 20% वहाँ तो वैकेंसी होगी ना, लोग काम कौन करेगा। देखिए सभी तरह हमें काम करना, हम नौकरी करके समाज की सेवा करने की गारंटी नहीं ले सकते। नौकरी होगी तो समाज की सेवा अच्छी कर सकता हूँ। मैं बिना नौकरी के बिजनेस करके भी समाज में बेहतर अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं हेल्थ में अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं कुपोषण में अच्छा काम कर सकता हूँ। मेरे जिले में तो वैसे भी जरूरत है, और हमारा जिला तो ऐसा है आज भी का आंकड़े की किताब 79% लोग गाँव में, जबकि प्रदेश में 65%, तो 14%, 15% लोग हम ज़्यादा ग्रामीण है। अभी 1 साल के मेरे अनुभव के बाद मैं देखा है कि सड़क में एजुकेशन और स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया है, कई अच्छे जिलों में नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है सारे बच्चे शहर में आ गए हैं गाँव छोड़ के। आपके पास यूनिवर्सिटी है, आपके पास मेडिकल कॉलेज है, आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपके पास पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आपके पास ITI है, आपके पास बहुत सारे प्राइवेट एजुकेशन संस्थाएं हैं बहुत सुंदर सी, कितनी चीज़ें हमारे पास है। जिले में मिनरल्स हमारे पास बात करें, लोग बाहर से जाकर मेरे यहाँ काम कर रहा है, यहाँ से चीज़ें तो वहाँ धंधा कर रहे हैं, नई जगह कर रहे हैं, हम यहाँ लेकर नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे इस तरफ पे जाकर बात सोचनी चाहिए फ्यूचर में जाके था, क्या हम यहाँ रह के 10 लोगों को काम दे सकते, दे सकते हैं, और उससे बेहतर दे सकते हैं जो बाहर का आदमी यहाँ पे करता है। क्योंकि हम अपने घर की चीज़ यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे लिए होगी, और अगर दूसरा आदमी हमारे यहाँ की चीज़ यूज करेगा तो उसकी वैल्यू नहीं है, उसे उतनी ही वैल्यू है, उसे कितना पैसा मिल रहा है, मेरे लिए कितनी अच्छी उसका इंटरेस्ट यहीं तक है। क्योंकि मेरे लिए दोनों इंटरेस्ट है कि उसकी कीमत क्या है और मेरे जिले के लिए कितना निकालना जरूरी है, कितना खतरनाक हो सकता है, कितना फायदेमंद है। तो हम उसको
नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल तिवारी मैडम के नेतृत्व में जो बच्चों का अच्छा लगता है, कंपनी कार्यक्रम होते रहते हैं बच्चों में, ये चीज़ें एक मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जरूरी चीज़ें होती हैं। शारीरिक विकास के लिए खेल कूद है साथ में, तो एक पूरक है। हमें नहीं कह सकता कि पढ़ाई है तो खेल नहीं हो सकता, खेल है तो गाना नहीं हो सकता। ये जरूरतें भी हैं व्यक्ति की और जीवन पूरक भी है एक साथ। कुछ लोग इतना बेहतर होते हैं कि तीनों चीज़ें उनके पास होती है, खेलते भी अच्छे हैं, गाना भी अच्छा गाते हैं, पढ़ाई भी बढ़िया है। कर सकते हैं, हम गाना नहीं गा सकते, हम पढ़ाई तो कर सकते हैं, खेल नहीं सकते, हम खेल अच्छा सकते हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकते। तो उस चीज़ में हम रहते हैं, ये सभी को नहीं मिलता है। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो सारे रास्ते खोल देती है। अगर एक चीज़ आपने कर ली तो एक चीज़ और कहता है, ये वक्त लौट के नहीं आता। आज आपने खेल की समय निकाल दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। और दूसरा, इसका शेयर होल्डर कोई नहीं होता है, बंटवारा नहीं हो सकता इसका। और हम ये भी कह सकते हैं पढ़ाई जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन जरूरत के अनुसार काम के लिए जितनी पढ़ाई मिली है वो वक्त मेरा यही है, इसे पूरा बेहतर तरीके से करके हम एक अच्छी चीज पे खड़े हो जाए, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे। आप जब भी पढ़ेंगे आपको ये तो मुझे आता ही नहीं है, आप जितना पढ़ेंगे फिर कहेंगे यार मुझे आता ही नहीं है, तो मेरा जी बेटा है ना बहुत बड़ा है। आपने जो पूरी जिंदगी 80 साल 90 साल की उम्र तक लगातार हर रोज भी 10 घंटे पढ़ोगे तो भी इसमें झेलने की ताकत है। ये स्टोरेज भरेगा नहीं कभी, ओवरफ्लो नहीं होगा। चीज़ ओवरफ्लो होता है फालतू की चीज़ें डालने से, टेंशन डालने से। हम दिमाग कहीं बैठे कहीं। एक चीज़ और बड़ी अच्छी कहावत है, उसने कहा कि भाई अगर दो आप जा रहे हो और आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया तो आपको लगता है ये ऐसा कैसे बोला, मैं भी तो बोल सकता हूँ, या आपको झगड़ा करने के लिए उकसा रहा है। कई बार हम देखते हैं हम रोड पर चले जा रहे हैं, वो तो बदमाश है ही, गाड़ी इस बाइक सबसे बरसात में ज़्यादा होता है, फिर निकाला छपा पानी मेरे ऊपर आ गया, हम खड़े हुए तो 4 बार गाली देते हैं अच्छे से पहले और तसल्ली मिल गया। कपड़े धुले नहीं मेरे, कपड़े तो गंदे ही है, तो गाली देने से क्या हुआ, मन हल्का हो गया। तो तुम तो बचे ही नहीं थे, तुम जैसे थे वो तो कहाँ बचे, तो आप मुझसे भी बुरे आदमी बन गए। ये दो ही ऑप्शन तुम्हारे पास होते हैं, या तो मुझे से बन जाए, आपको अगर मैं कमजोर तो नहीं बदला ले सकता हूँ। अगर उससे से बन गए तो तुम तो हार गए ना, फिर जीते कहाँ। ये तो उसी की कोई बदमाशी जो आपको लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, उकसा रहा था। आप बिना लड़ाई करे उसे सबक सिखा तब तो बेहतर है। तो मेरा लक्ष्य सामने होना चाहिए, लक्ष्य को इधर उधर भटकने की बहुत सारी अद्भुत चीज़ें आती हैं। एक एग्जाम्पल था कि किसी ने कीचड़ फैला दी, बाइक निकल के चला गया, किसी ने गाली दे दी। ये जीवन के साथ इस रूप में नहीं आते, किसी और रूप में भी आ सकता है। कई बार हम करते घर में गए तो सब घर में पास काम था, नहीं होमवर्क नहीं कर पाए, और पिताजी ने ऐसा काम लगा दिया, माता ने ऐसा लगा दिया। मैं ऐसे 2-3 बच्चे जानता हूँ, मेरे दोस्तों के बच्चे हैं जो घर में आके कभी होमवर्क नहीं किया, और आज वो बेहतर है। वो 30-35 लाख के पैकेज छोड़ गया, पूरे नहीं करना। दिल्ली कॉलेज का स्टूडेंट, मदर उसके GSITS इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर है, फादर बिजनेस करता है, दोनों इंजीनियर थे। वो होमवर्क कहाँ करता है, जब स्कूल में इंटरवल होता है, सारे बच्चे खेलते हैं, वो होमवर्क नहीं करते, और घर में जाकर थैला पटकता है, बढ़िया बैठ खाता है, घंटे में 2 घंटे खेलता है, वापस आ जाता है।
तो दोनों में मदद फादर में झगड़ा होता रहता उसको लेकर, तुम कुछ बोलते नहीं हो, पढ़ता नहीं है, मन चिंता करके रहता। जैसे लग रहा है कि आप कुछ अच्छा पढ़ लोगे तो फिर बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। बुढ़ापा बच्चों की वजह से किसी का अच्छा नहीं होगा, तो तब भी उनको अकेले रहना है। लेकिन आप बेहतर जगह पहुंच जाते हो तो उसकी लाइफ बुढ़ापा भी बहुत अच्छा करता है, सुकून के साथ करता है। और वो IIM इंजीनियरिंग गया मुंबई से बिना कोचिंग के, कलकत्ता IIM में गया, वहाँ से निकला, एक दो जगह प्राइवेट कंपनी में काम किया। बहुत छोटा लड़का है, 26-27 साल का होगा, अभी उसको 10 तारीख को शादी हुई है, मैं क्या नहीं पाया। कंपनी वाले उसको बोलते तुम नौकरी क्यों कर रहे हो, तुम खुद कंपनी क्यों नहीं बनाते, तुम्हारा जो ब्रेन उतना अच्छा तुम्हारे पास है कि तुम मेरी कंपनी में नौकरी क्यों करना चाहते हो। आप खुद भी कंपनी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, 50 लोगों को काम दे सकते हो। तो मुझे उस टारगेट के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। एक दूसरा डॉक्टर का बेटा है, बचपन से रफ एंड टफ उसके पास, 2 बच्चे हैं, मदर बेटी डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। तो सर दोनों पेरेंट्स मैंने इतने अच्छे ज़्यादा मस्त नहीं देखा, जो कभी किसी चीज़ की जिंदगी है मेरा मस्त नहीं। दोनों बच्चे बहुत बेहतर निकले, एक इंजीनियर हो गया, दूसरा डॉक्टर है, ऐसा टैलेंट। तो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मेडिकल संस्थान है, वहाँ पहुँच गए। तो हम तय कर लें, हमें रोक नहीं सकता कोई, हम नहीं जा सकते। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डिसाइड क्या करना चाहते हो। आप आगे चले जाओगे तो पीछे हाथ करके 2 लोगों को खींच सकते हो। अब नीचे युद्ध करते रहोगे दरवाजे पे, तो एवेन्यू की तरफ फंस जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे। तो पहले आगे निकलो, फिर दूसरों का सहारा मिलो। विद्यालय पढ़ाई के साथ खेलो, खुश रहो, मस्त रहो। और जो बच्चे बड़े हैं, छोटे तो भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। मैडम ने बोला था कि बच्चे क्लास में जाते हैं बीच में। जब भी आपको वक्त मिलता है तो कोई खाली क्लास अगर है, उस दिन टीचर किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, तो आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हो। और आपको उसमें मुझे लगता है कि नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा आपको, सुकून में मिलेगा। छोटे बच्चों की क्लास जाके अपने से छोटे क्लास में ले सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें कहीं प्रॉब्लम आ रही है उसकी सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। आप जितना इसको बांटोगे उतना आपको मिलेगा। अकेली ऐसी चीज़ है जो बांटने से हमारी बढ़ती है, बातें बांटने से बढ़ती है, वो है आपकी बुद्धि, शिक्षा। हम जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा हमें मेरे पास जमा हो जाएगा। करिए उसको लक्ष्य के साथ, दोनों मिलकर, ये दोनों पूरक हैं टीचर और विद्यार्थी। तो अगर हमें फिर दोहराता हूँ, चूँकि मुझे प्राइवेट स्कूल में ये करते होंगे, तो फिर भी हमें बच्चे के साथ बात करेंगे तो हम आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे लक्ष्य शायद नहीं मिलेगा। हमें करना चाहिए, हम शायद डिसाइड नहीं कर पाएंगे। कई बच्चों को देखा भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन पर पहुँच गए, क्या करोगे मुझे पता नहीं, होता ही नहीं क्या। कुछ बच्चे हाई स्कूल में तय कर लेते हैं, कुछ नायक से बात करते हैं, मुझे ये करना है। मेरी बेटी है, मैं स्कूल में बोला तो उसको एग्जाम दिलाने के लिए तैयार कर ले, तो जो इनाम मतलब सबसे अच्छा एजुकेशन मेरे घर में उसका। हम तो नहीं पढ़े, हमारी किस्मत भी नहीं इतना अच्छा था। मध्य प्रदेश के 3 बेस्ट स्कूलों में से दिल्ली कॉलेज भी है, इंडिया का स्कूल, सिंधिया स्कूल, न्यू स्कूल और दिल्ली कॉलेज, ये सब राजे महाराजा के स्कूल थे। लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी संस्थाएं खोली, संपत्तियाँ ला कर उस जमाने में। वहाँ की पढ़ी लिखी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा उसने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने लॉ भी वहीं से किया। उसको मैंने बोला एक बार एग्जाम दे दे, चाहे नहीं हो तो नहीं करना। देखिए ये मुझे खुशी इस
काट देगा, वो कहीं भी रहेगी, वो भूख नहीं मर सकती। दुनिया के किसी भी कोने में उसको फेंक दिया जाए वो बेकार नहीं रहेगी। तो बच्चों काबिल बनो, तुम काबिल बनो। मेरे सभी बच्चों के स्नेह, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज प्रिंसिपल्स एंड स्टाफ को थैंक्स, बच्चों से बात करने का मौका दिया। मैं एक बार पढ़ा सकता हूँ, क्लास में बुलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए स्माइल लगन सर, सभी लोग। वेट करना ना, अब 10 मिनट। यहाँ सामने देखिएगा सर, स्माइल रखेंगे सब लोग। सर प्लीज। स्माइल रखिएगा। रेडी। Respected Principal Ma'am and everyone present here, I, Shri Tirari, Deputy Secretary Narayan House, feel privileged to propose a vote of thanks on behalf of Maharishi Vidya Mandir Shahdol. I would like to express my sincere gratitude to our honorable guest, Shri Kedar Singh Ji, Collector Shahdol, and President of the ceremony, CEO, Jilla Panchayat, Mrs. Soumya Anand Ji, for gracing us with their inspiring thoughts. Your words will definitely motivate us. I would like to express my deepest gratitude to our respected Principal Ma'am. Her constant guidance and encouragement guides and encourages us to be successful. A special thanks to our loving and respected teachers for their hard work and dedication, helping us to grow into the best version of ourselves. A big thanks to all the students and the volunteers for their enthusiastic performance. Your smiles, claps and support has made this day even more memorable. I thank my fellow student Vikram for his outstanding band commands. Thank you everyone for being a part of this event and for to serve the nation so that our beloved country may once again shine as a Vishwaguru for the world. Thank you. Jai Gurudev, Jai Maharishi. Thank you, Shri. आप अपने से बेहतर बच्चे दिखाना ही आपने आज की चांदनी में ही हमको
कथा भी आपने सुनी होगी, जो चली गीत बहुत बजता रहता है, भगत के प्रश्न है भगवान, है ना, भगत है। एक छोटी सी स्टोरी है उसकी। एक मथुरा वृंदावन से यूपी की कोई लड़की होती है, अपने माँ बाप के साथ 8 साल वृंदावन जाती है, दर्शन करती है, फिर बड़ी होती है, शादी कर देते हैं, दिल्ली चली जाती है। तो फिर वहाँ से सालों में एक बार आती है, तो लगा हम बार बार नहीं आ सकते, धीरे धीरे वो उसको वो घर में रखती है, उसी को पूजा करती है, उसी के साथ खेलती है, उसे बेटे की तरह मानती है। पहले ईश्वर में इतना घुस गई है कि ईश्वर को उसने अपना पुत्र मान लिया। वहाँ जो बात होती है भगत के बस में है भगवान, बहुत अच्छा भजन बनाया है, वो बहुत बसता होती है। वो हर साल वो जन्माष्टमी होता है तो लोग उसको नहलवाते हैं, कपड़े बदलते हैं, पूजा करते हैं। तो वो अपनी बहू को बोलती है कि भैया आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप इस हमारे लल्ला को नहलवा दो, धुला दो, कपड़े पहना दो। तो वो नाराज हो जाती है कि आज की पढ़ी लिखी, तो वो उठने की कोशिश करती है, तो उसे लगता है कि ये उठेगी तो गिर जाएगी सास उसकी, तो वो उठाती है, मूर्ति को लेके साफ करती है, हाथ में छूट जाती है, नीचे धड़ाम से लगती है, तो रोने लगती है बूढ़ी माँ कि तूने मेरे बेटे को गिरा के चला जाता है कि नहीं भाई उसको कुछ नहीं हुआ, मैंने देख लिया। मैंने ऐसे नहीं, जो वाला होता है ना गली में लटका ऐसे करके देखते हैं, वो लगा के देख। तो दूसरा डॉक्टर बुलाया जाता है, उससे उसको जब चारों चेक करता है, जब उसके धड़कन में लगाता है तो डॉक्टर पागल हो जाता है।
दिल उसका धड़क रहा है मूर्ति का, तो वो सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से भाग जाता है और कहते हैं वो जाके वृंदावन में महात्मा आ जाते हैं। तो ये काल्पनिक कथा है। तो ऐसे जो मीरा है, बहुत सारे लोग बैरागी में चले गए, कबीर को पढ़ो, दिन भर बनारस में रहा और कहते हैं बनारस में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है। एक ऐसी मान्यता है, देखा होगा बनारस में जब भी जाओगे, बड़े बड़े लोग लेना या पेरेंट्स के साथ जाओगे तो गंगा का एक किनारा बनारस वाला सैकड़ों अर्थी जल्दी मिलेंगी 24 घंटे। लोग कहीं भी डेथ होती है उसको जाते हैं बनारस में जाके चलाएंगे, मान्यता है। बनारस 2 नदियों के पीछे बसा हुआ शहर है, इधर बनारस है, इधर गंगा है, पीछे बनारस। कहते कबीर जब कहा गया कबीर में जितने बार बनारस में रहा और भगवान के बड़े भक्त थे, बोले बनारस में मरने के बाद अगर स्वर्ग गए तो तेरी सेवा करने का मतलब क्या है। तो बगल में मगर नदी के दूसरे तरफ वो वहाँ शिफ्ट हो गए कहते हैं क्लास में। अब पढ़ लेना भी जाके नेट पर, और वहाँ जाके उनकी डेथ हुई तो अंतिम संस्कार भी यात्रा लेके निकले। तो कई लोगों ने कहा या हिंदू है तो मुसलमान पता ही नहीं। अब ऐसा है तो कबीर, कई बार आपने देखा होगा समीर ऐसा नाम है जो दोनों के पास होता है, कबीर है दोनों में मिल सकता है। समीर को शर्मा बोल देता है तो हमारा हिंदू हो जाता है, ब्राह्मण होता है, समीर खा हो जाएगा तो हिंदू हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन नाम होते हैं, लड़के लड़कियों के कॉमन नाम होते हैं, जानकी प्रसाद, जानकी देवी, रामसिया, सुदामा, तुलसी, मुन्नी लाल, मुन्नी देवी, ऐसे बहुत सारे कॉमन नाम होते हैं जो लेडीज के भी हो सकते हैं, जेंट्स के भी हो सकते हैं। किंवदंतियाँ कुछ बनती हैं सच्चाई के आधार पर बनती है, ऐसे नहीं बनती। कहावतें जो पुरानी है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होते हैं, तब कहावतें गढ़ी जाती हैं। फायदेमंद देखो अच्छा बढ़िया बोला, ये बहुत पतला है दवाई शिवाजी पे आज तक पिक्चर क्यों नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए लाइफ का हर मोमेंट इतना इम्पोर्टेंट है। तो निर्माता ये नहीं कह पा रहे कि मैं सब लोग सामने देखिएगा, स्माइल रखें, रेडी, स्माइल रखिएगा, रेडी, स्माइल रखेंगे सर, रेडी, सब लोग सामने देखिएगा। क्लास में लेके सिर्फ आपको बच्चे दिख रहे हैं, देखना तो सभी चाहते हैं फोटो का, पूरे में बच्चे